Dear students, Assalamu alaikum dear students. Tomorrow we talked about the ratio test, and today we are going to discuss about the root test, right? So if we have a series, z1 plus z2 plus so on is such that for every n greater than some n, then in that case we will have zn modulus nth root less than equal to q less than 1 for n greater than capital N, right? So where q लेस देन 1 इज़ फिक्स्ड, ठीक है. सो दिस सीरीज़, ये वाली जो सीरीज़ होगी हमारे पास रूट्स वाली, विल कन्वर्ज एब्सोल्युटली, राइट. और वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी इफ़ n इज़ लेस देन 1 एंड इफ़ द सेम इज़ ट्रू कि ये जो है zn modulus it is greater than 1, then the series will diverge, right? In that case the series will diverge. So let's discuss about the theorem 10. So theorem 10 says if a series as z1 plus z2 plus so on is such that limit n approaches to infinity, nth root of zn modulus is equal to L, then first point is that the series will converge absolutely converges absolutely if L is less than 1, series diverges if L is greater than 1, right? And if L is equal to 1, the test will fail, right? This means that no conclusion is possible for us, right? So let's discuss about the power series, right? सो अब हम पावर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि पावर सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या है. So power series, this is the most important series in complex analysis. This series is the most important series in complex analysis. Why? क्योंकि यहाँ पे जो हम सीरीज़ डिस्कस करेंगे, जब हम जी ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे इस तरह की ही पावर सीरीज़ आपके सामने आएंगी, ठीक है. सो अ पावर सीरीज़ in powers z is equal z minus z naught, ठीक है. So we will have the series summation n is equal to 0 to infinity a n z minus z naught की पावर n. So this is equal to a naught plus a1 z minus z naught plus a2 z minus z naught का स्क्वायर and plus so on, where z is a complex variable, ठीक है. सो z जो है वो complex variable है and a naught
A1 आर कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जबकि A1 और A0 और A1 जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली कोफिशिएंट्स कह रहे हैं। So these are called the complex coefficients, right? So z0 is called the real constant. अब जो इसमें z0 वाली टर्म है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, रियल कांस्टेंट है हमारे पास, राइट? सो अगर ये रियल कांस्टेंट है तो इसको रियल कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसको हम सेंटर ऑफ द सीरीज भी कहते हैं। इस z0 इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सीरीज, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो z0 है, जो रियल कांस्टेंट है, उसको हम सेंटर ऑफ द सीरीज़ भी कहते हैं। सो अगर हमारे पास ये z0 ज़ीरो के इक्वल हो तो फिर हमारे पास एक स्पेशल सीरीज़ आती है, ठीक है। अगर हमारे पास z0 ज़ीरो है जी, सो इफ़ z0 is equal to 0, so this implies that summation n is equal to 0 to infinity a n z n, so this is equal to, ठीक है, a n z माइनस z नॉट की पावर n था, z नॉट ज़ीरो है तो a n z n रह गई, ठीक है। सो a नॉट प्लस a1, z माइनस z नॉट है तो z नॉट इज़ ज़ीरो, a1 z plus a2 z square plus so on, right? So this is our special series when z naught is equal to 1. So this is our equation number 1, ठीक है। So let's discuss कि ये हमारी क्या है, equation number 1. So अब हम इस equation का हम कहते हैं कि हम convergence behavior of power series देखते हैं, ठीक है। So we will discuss about the convergence behavior of power series. So if we have the example number 1, right, and if we say that summation n is equal to 0 to infinity zn, right, if it is zn, so सब जब z 0 है तो it is 1, प्लस z1 है तो it is z, z2 है तो z square plus so on, right? So ये क्या है, this series will converge absolutely, ठीक है, it will converge absolutely if we know that कि कंडीशन क्या है, अगर z मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगी, एंड डाइवर्जेस इफ z मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है हमें नज़र आ रहा है कि जब हम इसमें z की कोई भी वैल्यू हो, जैसे हो सपोज़ 1 ही है, अगर z की 1 वैल्यू है तो ये 1 है, तो यहाँ पे भी 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 का क्यूब इज़ 1, 1 का फोर्थ पावर इज़ 1, ठीक है। सो वो z मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जब फिर z का मॉडुलस भी ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में ये सीरीज़ हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जब यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो क्या है हो, अगर सपोज़ के 0.5, सो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर इज़ 0.25 प्लस 0.5 का क्यूब जो है वो और कहाँ छोटा होता जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा नंबर छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ जो है इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे इट विल लेस दैन 1, इफ़ इट इज़ लेस दैन 1 सो दिस सीरीज़ विल कन्वर्ज। सो इस सीरीज़ में अगर हमारी z की वैल्यूज़ लेस देन 1 है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ है, अगर इसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैं तो ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज़ ऑफ z, ठीक है। सो नाउ डिस्कस अबाउट दी कन्वर्जेंस एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कहती है कि कन्वर्जेंस विद एवरी z, ठीक है, यानी हर z के साथ जो है वो कन्वर्जेंस डिफ़र करेगी। सो हम उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज
हमारे पास पावर सीरीज़ है समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी zn/n, ठीक है। सो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखी है, z की बार जब हम 0 पुट करते हैं इट विल बी 1, जब हम 1 पुट करते हैं 1/1 इज़ z, प्लस 2 पुट करते हैं 2/2 इज़ जेड स्क्वायर बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। इस सीरीज़ को हम कहेंगे कि ये सीरीज़ क्या है, बेसिकली मैक्लॉरेन सीरीज़, ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज़। अगर ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छा मैक्लॉरेन सीरीज़ आपने आई डोंट थिंक कि रियल पार्ट में पढ़ी है, लेकिन रियल पार्ट में भी अगर मैक्लॉरेन सीरीज़ हो तो वहाँ पे ये नंबर कम्प्लेक्स की बजाय रियल होगा, उसमें भी ऐसे होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन। मैक्लॉरेन सीरीज़ ऐसी होती है, ठीक है, यानी विद टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करती जाती है। अब क्या है कि ये हमें साफ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम इसमें z की वैल्यूज़ पुट करते थे, z की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 1 है तो वो ग्रेटर देन 1 है तो भी ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर हम इसमें 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और अगर हम इसमें लेस देन 1 पुट करें तो भी हमारे पास क्या करेगी, ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, यानी हर z की पावर जैसे जैसे इंक्रीज़ करती जा रही है वैसे वैसे ये नंबर छोटा होता जा रहा है और ज़ीरो को अप्रोच करता जा रहा है, ठीक है। So this series is convergent for every z, हर z के साथ ये नंबर कन्वर्ज करता जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो अगर हम इसके ऊपर जो रेशो टेस्ट था वो लगाएं तो रेशो टेस्ट क्या कहते हैं, z ऑफ n+1 over n+1 divided by the previous number, next number divided by the previous number, ठीक है। सो इसका मॉडुलस, जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो हमें पता है कि ये इसको हम लिख सकते हैं zn+1 डिवाइडेड बाय zn+1, ठीक है। हमें पता है कि n(zn+1) ओवर zn जो है वो किसके इक्वल है, z मॉडुलस के, सिंस n(zn+1) डिवाइडेड बाय zn, सो दिस इज़ इक्वल टू z मॉडुलस, ठीक है। सो अगर ये z मॉडुलस है सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, z मॉडुलस डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। हमारा जो है वो टर्म रह गई z मॉडुलस डिवाइडेड बाय n+1। तो ये जो है अब जैसे जैसे हमारे पास n की वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है, n जो है वो n की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाएंगी, तो हमारे पास ये सीरीज़ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमारी ये सीरीज़ किसको अप्रोच करेगी, इट विल अप्रोच ज़ीरो, ठीक है। सो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, सो दिस मीन्स कि हमारी ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, कन्वर्ज कर रही है। और कन्वर्ज किस पे कर रही है, 0 पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, राइट। सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 3। जी, सो एग्जाम्पल नंबर 3 सेज कि कन्वर्जेस ओनली एट सेंटर, ठीक है। हमारे पास समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n(zn), ठीक है। अगर हमारे पास ये सीरीज़ है, ठीक है, और हमारे पास क्या है 1, इसकी सीरीज़ क्या आ जाएगी 1 प्लस z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6z क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज़ आ रही है हमारे पास इसकी।
अब इस तरह की सीरीज़ जो है वो क्या है, जैसे जैसे z की पावर इंक्रीज़ करती जा रही है, ये जो है ये टर्म ये क्या कर रही है, ये इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। सो ये जो सीरीज़ है जैसे जैसे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वैसे वैसे ये सीरीज़ भी किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सो इट मीन्स कि दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़, राइट। अगर हम इसका रेशो टेस्ट फाइंड करें, रेशो टेस्ट, ठीक है। सो हमारे पास है, इफ़ वी से कि हमारे पास क्या आ जाएगा, z n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होल डिवाइडेड बाय n, और जी zn/n, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा जी ओके। इस केस में हमारे पास नीचे वाली टर्म्स में, यानी जो ये जो सीरीज़ है इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो zn+1 ओवर n+1 नहीं है। क्यों नहीं है ऐसे, क्योंकि वहाँ पे जब सीरीज़ थी वो थी z/n सीरीज़ थी, यहाँ पे zn/n सीरीज़ थी, यहाँ पे zn/n नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, nzn है, ठीक है। सो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, n+1 zn+1 डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगी रेशो टेस्ट में नेक्स्ट टर्म इज n+1 z ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय nzn मॉडुलस, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ये टर्म आ जाएगी किसके इक्वल, z मॉडुलस के। सो n+1 z मॉडुलस, ये z मॉडुलस के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वैसे वैसे हमारी ये वाली जो सीरीज़ है ये भी किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई हमारी ये टर्म जो है वो क्या है, ये यूज़लेस सीरीज़ है। दिस सीरीज़ इज़ अ यूज़लेस सीरीज़, ठीक है। और ये यूज़लेस सीरीज़ है, और अगर इसको कन्वर्ज करवाना भी है तो ये सिर्फ कन्वर्ज करेगी ज़ीरो के ऊपर। जब z की वैल्यू ज़ीरो है तो उस केस में ये कन्वर्ज करेगी, और अगर z की वैल्यू ज़ीरो है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये सीरीज़ सेंटर पे कन्वर्ज करती है, सेंटर पे कन्वर्ज करेगी, सेंटर के अलावा कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस सीरीज़ इज़ अ यूज़लेस सीरीज़। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्योरम 1। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने कराई हैं इनको अगर एक उसमें कंक्लूड करना हो तो हमारे पास थ्योरम 1 है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज से रिलेटेड। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एवरी पावर सीरीज converges at center z naught, right. Second point, if one converges at a point z is equal to z1 not equal to z0, it converges absolutely for every z closer to z0 than z1, right. That is z minus z0 modulus is less than z1 minus z0 modulus, right. So इसका मतलब क्या है कि एवरी पावर सीरीज़ कन्वर्जेज एट z0, कि हर पावर सीरीज़ जो है वो z0 के ऊपर कन्वर्ज करती है। अगर वो जो इक्वेशन 1 लिखी थी मैंने वो थी
yes, it was summation n is equal to 0 to infinity a n z n, so this is equal to a नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड. ठीक है, अगर ये जो इक्वेशन वन है कन्वर्ज करे एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू जेड वन नॉट इक्वल टू जेड नॉट, it converges absolutely for every z closer to z naught. so z naught जो है, जो z naught बेसिकली सेंटर है ना, ठीक है, सेंटर ऑफ दी डिस्क के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स है z naught की विसिनिटी में, उन सब के लिए ये क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी. ठीक है, सो z माइनस जेड नॉट मॉडुलस विल ऑलवेज बी लेस दैन z1 माइनस जेड नॉट मॉडुलस, राइट. तो हमारे लिए हमें ये कन्वर्ज करेगी. देन थर्ड पॉइंट इज इफ वन डाइवर्जेस, अगर वन जो है इक्वेशन वन डाइवर्ज करे, इफ वन डाइवर्जेस at z is equal to z2, it diverges for every z, ठीक है, further away from z naught then z2. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि z नॉट से जितने भी फार्दर पॉइंट्स हैं, ठीक है, एट z इज इक्वल टू z2 पे डाइवर्ज कर रही है, इट विल डाइवर्ज फॉर एवरी z फार्दर अवे फ्रॉम z2 z नॉट देन z2. ठीक है, सो z2 से जितने भी पॉइंट्स बाहर हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. ठीक है, सो हमारे पास ये है. अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं. ठीक है, सो अगर हमारा इस तरह की बात है तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है. So let us consider the smallest circle. The smallest circle with center z naught. Let R denote its radius. Then we will have z minus z naught modulus, this is equal to r, right. So also, ठीक है, अगर z माइनस जेड नॉट इक्वल r है, सो इट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस. इट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस विद रेडियस r. ठीक है, अब अगर हमारे पास z माइनस जेड नॉट लेस देन r है तो हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है. ठीक है, and if z minus z naught is greater than r, our series will diverge. ठीक है, सो अगर मैं इसकी एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे है कि हमारा एक ये सर्कल है. ठीक है, इसको कह लें सपोज ये यूनिट सर्कल है विद रेडियस 1. ठीक है, सो हमारा ये r है रेडियस इसका, और ये हमारा z नॉट सेंटर ऑफ दिस सर्कल है. ठीक है, सो अगर ये z नॉट जो है वो लेस दैन रेडियस है तो हमारा जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, और अगर ये ग्रेटर दैन 1 है z माइनस जेड नॉट, तो फिर हमारी ये सीरीज़ यानी ये आउटसाइड द सर्कल जो है वो डाइवर्जेंट है. यही सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, राइट. सो आई होप इट क्लैरिफाइज. लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करने लगे हैं हम. जी, so example number 4 is saying कि on the circle of convergence with r is equal to 1, radius 1 है,
ऑल द थ्री सीरीज समेशन जेड एन बाय एन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एवरीवेयर, हर जगह पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि जेड एन बाई एन स्क्वायर है और एन जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा ये टर्म छोटी होती जाएगी और ऑब्वियसली इट विल बी लेस दैन 1, ठीक है, सो इट विल कन्वर्ज। और जो समेशन जेड एन बाई एन है ये कन्वर्ज करेगी व्हेन जो एन है -1 पे, बट डाइवर्ज करेगी एट +1 पे ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और अगर हमारे पास हो समेशन जेड एन, ठीक है, तो ये जेड की पावर्स हमेशा इंक्रीज ही करती रहेंगी, तो ये सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, डाइवर्ज करेगी ये सीरीज़, श्योरली हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्योरम नंबर 2, ठीक है, विच इज़ द कॉशे हमदर्द फार्मूला हम यहाँ से देखेंगे और हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे जी। सो थ्योरम 2 सेज if we have suppose that the sequence an plus 1 divided by an modulus for n is equal to 1 2 up to so on converges, अगर ये कन्वर्ज करती है with limit L, if L is equal to 0, L equal to 0 है, then R is equal to infinity, R infinity है, that is the power series of 1 converges for all z, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है an + 1 ओवर an, सो दिस सीरीज कन्वर्जेस विद लिमिट l इफ़ l इज़ इक्वल टू 0, देन रेडियस क्या है, अगर l 0 है तो रेडियस इन्फिनिटी है, तो पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और इफ़ l नॉट इक्वल टू 0, इफ़ l नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स के l ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, देन उस केस में r किसके इक्वल है, 1/l के, ठीक है, r अगर 1/l के इक्वल है, सो l इज़ दिस, सो इसका ऑपोजिट आ जाएगा लिमिट r is equal to 1/l, this is equal to limit n approaches to infinity an over an plus 1 modulus, right। so अगर if an plus 1 divided by an modulus अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, देन r इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, देन उस केस में r किसके इक्वल है, 0 के। सो दिस इज़ नोन एज कॉशे ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज कॉशस फार्मूला। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल नंबर 5। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर हमें लिमिट पता हो कि हमारी लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, और लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। सो उधर से हम अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 सेज summation n is equal to 0 to infinity 2n by n square z minus 3 iota की पावर n,
राइट। अगर ये है तो आपके पास क्या है, आपने आर फाइंड करना है, ठीक है। सो आर दिस इज इक्वल टू 1/L, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन ओवर ए एन प्लस 1, ठीक है। सो आ जाएगा आर दिस इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ए एन प्लस 1 यानी नेक्स्ट टर्म, सो जेड इज -3 आयोटा की पावर एन जो है, यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं 2n/n², ठीक है, ए एन के लिए। सो हमारे पास क्या है, हम लिख लेंगे इसको 2n/n², ठीक है। 2n/n² is our nth term and our next term is 2n+1 divided by n+1 whole square, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n/n², और इसको हम लिख सकते हैं 2n+2 डिवाइडेड बाय n+1 होल स्क्वायर। इसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, राइट। सो हम इसको आगे चेक करते हैं जी। सो दिस इज इक्वल टू limit n approaches to infinity 2n, its modulus 2n over 2n+2 n+1 whole square divided by n² मॉडुलस। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्रोच कराएंगे आंसर आ जाएगा 1/4, राइट। सो दिस इज़ आवर कि हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर वो लेस देन आया है किससे, लेस देन जी। सो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कन्वर्ज कर गया है ना, कन्वर्ज इसलिए कर गया यानी 1/4 के ऊपर कन्वर्ज कर गया, ठीक है। 1/4 के ऊपर किसी एक नंबर स्पेसिफिक के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है कि 1/4 के ऊपर हमारा रेडियस जो है वो कन्वर्ज कर गया, ठीक है। सो दिस इज़ आवर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। सो आई होप के इट क्लैरिफाइज, और अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।